In 71 war, we had a lot of cases of spinal cord injury. This institute is taking care of all the soldiers from the Army, Navy and Air Force who have met with an accident and have got sustained spinal cord injuries. And this is while serving the nation in the line of duty. Our aim is to inculcate in them a feeling of positivity so that they know that it is not their disability but the ability that counts. They've served in some of the most difficult terrain. They've fought wars for India. They've taken on terrorists, but they've been disabled while in action. We're talking about some of our key ex-servicemen. Hello and welcome to a very special partnership. NDTV and Hyundai, it's our Samarth campaign. It's a campaign which aims to build an inclusive society for people with disabilities. I'm here in Pune at the Paraplegic Rehabilitation Center, and the motto absolutely clear: warriors with wings. Because the people over here are warriors with wings. They are absolute champions. They brought glory to India. They won medals for India. They've excelled in so many phases of work. And the motto for all of these men, and it comes naturally, is this: if you have disabilities, you are neither out nor are you down. On your mark! Red! I am Colonel Dr. Ratan Kumar Mukherjee. I am the Medical Director of Paraplegic Rehabilitation Center, Khadki. This institute is a unique institute, of its own kind, which is not only in India but it's in Southeast Asia. So this institute is taking care of all the soldiers from the Army, Navy and Air Force who have met with an accident and have got sustained spinal cord injuries. And this is while serving the nation in the line of duty. Now, I will tell you a little bit of rehabilitation, how it started. If you really see, during Second World War, there were a lot of cases of spinal cord injuries. Now, it was seen that none of these cases they survived for more than 2 years. So, it was seen why these people are not surviving. So, a study was carried out by Sir Ludwig Guttmann, who is known as father of paraplegia. So, he found out that because there is no rehabilitation, that is the reason why these people are not surviving. Rehabilitation with what? It is not only medical rehabilitation, it is medical rehabilitation, physical rehabilitation, psychological rehabilitation, financial rehabilitation, spiritual rehabilitation, social rehabilitation. Everything has to be carried out so that all these people, they are included in the society, and then only these people are going to survive. So, what happened is, in the year 1971, we had the Bangladesh war. And in that we had a lot of cases of spinal cord injuries. Now, spinal cord injuries, what happens is, all these cases, either they sustain injury above the neck or it may be below the neck. So, either they become paraplegia or they become quadriplegia. So, in armed forces what happens is, all these spinal cord injuries, when they get the injury, they are treated in the hospital, and it takes about 1.5 to 2 years for these people to reach to a final stage. And once they reach a final stage, then we know that not much of improvement is going to take place. Then a board is held in the armed forces, and we see whether these people are going to continue in the armed forces or they have to be removed from the armed forces. Now, in 71 war, we had a lot of cases of spinal cord injuries. So, when they reached the final stage, that was in 1973, and they were about to be ported out and invalid of the service. So, that was the time when they said, so where do we go now? So, that was this time when this school of thought came, that why don't we have such an institute where these people who are boarded out of the service, they should be taken care of and they should be rehabilitated. So, based on that, the foundation stone of this center was laid on 27th of June 1973 by the then Chief of Army Staff General G.G. Bevur, PVSN, and it was formally inaugurated on 20th of September 1974 by Shri Fakhruddin Ali Ahmad, the then President of India. Our aim is very clear. Our aim is
to inculcate in them a feeling of positivity, so that they know that it is not their disability but the ability that counts. They become independent, they can lead an independent life with full pride and dignity, with their heads held high. What you see in them is the never die spirit. The never die spirit, you know, it is worth seeing in them. If you really see from Amol Boriwale to start with. और जिस दिन मैं पीआरसी में आया तो वहाँ पर देखा जो हमारे इसमें महाराष्ट्र में बैलगाड़ा शर्यत होती है, एकदम उसके जैसा ये व्हीलचेयर पे एकदम झुक झुक के हाथ मारते हैं पूरा ताकत से। और वो देखा, अरे बोला ये तो इतना एक्साइटमेंट है इसमें कि तो हम कर सकते हैं गेम। मेरा पोस्टिंग था वहाँ सुरनकोट में, हमारा पलटन था सारा, और वहाँ से CBS स्क्वाड बैटल स्कूल जो है वहाँ हमको लास्ट बोले तो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो वो ट्रेनिंग के लास्ट डे रोड ओपनिंग पार्टी में हम लोग थे, तो आगे एक ट्रुप था, पीछे एक ट्रुप था, तो ऐसे ट्रेनिंग का ही एक हिसाब था वो, मगर वो रोड ओपनिंग पार्टी का लाइव डेमो जैसे था। तो उसमें माइन जैसे पीछे माइन आगे तार, तो किसी का पैर आगे तार को लग गया और मैं पीछे वाला ग्रुप में था, तो सबसे क्लोज़र मैं ही माइन के था, तो उसमें माइन ब्लास्ट में मेरा इंजरी हो गया। तो लोअर पार्ट पूरा ही डैमेज हो चुका था उस समय, जैसे लेफ्ट लेग तो पूरा ही टूट गया था, टुकड़े टुकड़े हो गए थे, और रीढ़ का हड्डी में कुछ स्प्लिंटर गए, पीठ में भी कुछ स्प्लिंटर गए थे, तो ज़्यादा इंजरी था, बहुत ज़्यादा सीरियस भी था उस समय। आर्मी का ट्रेनिंग ही इतना हार्ड होता है कि अभी जो भी होगा सिचुएशन, मुश्किल वक्त सिपाही सख्त, ये बोला ही गया है। तो वो ट्रेनिंग में पहले से ही हार्ड था। और MH में जब था मैं तो काफ़ी टूट गया था, बोले तो ना सादा अपना पानी का बोतल भी एक हाथ से नहीं उठा पा रहा था, इतना वीकनेस था, और राइट हैंड तो पूरा ही ख़त्म था। थोड़ा दिन वहाँ रिहेबिलिटेशन हुआ कुछ, और बीच में मुझे कुछ वहाँ से PRC से कुछ लोग आते थे वहाँ पे कि हम वहाँ गेम खेलते हैं ऐसे वैसे। मैं बोला ऐसे हालत में भी कोई गेम खेल सकता है क्या? तो मैं वो देखने के लिए यहाँ आया था। और जिस दिन मैं PRC में आया तो वहाँ पर देखा जो हमारे इसमें महाराष्ट्र में बैलगाड़ा शर्यत होती है, एकदम उसके जैसा ये व्हीलचेयर पे एकदम झुक झुक के हाथ मारते हैं पूरा ताकत से। और वो देखा, अरे बोला ये तो इतना एक्साइटमेंट है इसमें कि तो हम कर सकते हैं गेम, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू PRC में आता रहा, MH में होते हुए भी। MH में होते हुए ही मुझे यहाँ PRC में गुरुंग सर है, परेरा सर थे, तो उन लोगों ने मुझे अच्छा गाइड किया कि आप बॉडी अच्छा है, आप गेम में शुरू कीजिए, आपको जो भी ट्रेनिंग लगता है हम करेंगे कुछ कोशिश। तो फिर उन्होंने मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया, खासकर गुरुंग सर ने। यहाँ मैं PRC में आया था 2009 में, 2008 में आया, 9 में मैं छुट्टी पे था। तो यहाँ PRC में एक लेटर आया था कि एक नया इवेंट चालू कर रहे हैं हम लोग, तो कैंप के लिए आपका PRC से कुछ लड़कों को भेजो। तो मुझे कॉल किया और बोला कि तेरे को वहाँ जाना है कैंप के लिए। तो मैं भी एक्साइटमेंट था कि एक नया गेम खेलने को मिलेगा, चलो चलते हैं। और जैसे इसको पकड़ा आर्चरी को, तो वो फीलिंग था कि जैसे हम फील्ड में कंटिन्यू अगर शूटिंग भी करेंगे ना तो भी थक जाएंगे, मगर आर्चरी में वो फीलिंग नहीं था। एक्साइटमेंट बढ़ते ही जा रहा था, चैलेंज बढ़ते ही जा रहे थे, और उसको दिन भर भी प्रैक्टिस करो, ऐसा सेटिस्फैक्शन नहीं लग रहा था, अरे और कुछ करना बाकी है। तो वो एक चीज़ रखी कि मुझे आर्चरी से आज तक जोड़ के रखा है उसने। मेरा शादी का ऐसा था कि मैं बोला अब जहाँ मेरे सभी सगे संबंधी गांव में रहते, तो मेरे सगे संबंधी तो यहाँ PRC में है, बोला वो लोग मेरे सुख दुख में नहीं है, फिर सुख दुख में मेरा PRC मेरे साथ है। तो मेरा कहना भी था, कर्नल साहब से भी वही कहा था कि मैं इन लोगों का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, ना कि उनका। वो लोग आए ना आए वो बात की बात है, मगर ये लोग अगर सभी मेरे शादी में प्रेजेंट रहेंगे तो वो मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात रहेगी। मेरा सबसे बड़ा मेडल मेरे को 2014 में मिला, पैरा एशियन गेम्स में जब मैं पार्टिसिपेट किया था। 2014 में क्लासिफिकेशन पहले था कि W2 और ओपन ऐसे 2 क्लास होते थे, उसके बाद में सारा क्लब कर दिया, सारा एक ही क्लास खेलेगा ओपन। तो जो मैं व्हीलचेयर पे हूँ और स्टैंडिंग है, तो दोनों एक ही क्लास में खेलेंगे। तो वहाँ कंपटीशन काफ़ी लेवल पे बढ़ चुका था, और मैंने कोशिश की कि अपना बेस्ट देने का, और काफ़ी कट टू कट, जैसे 5-5 टाई पे भी सिलेक्शन ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हुआ, 3rd प्लेस पे वो भी। वहाँ से लगा कि नहीं अभी और तैयारी करना पड़ेगा। एशिया खेलने को मिला, एशियन गेम्स काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पे।
वहाँ पे भी सेम वही रहा, टीम इवेंट बंद हो गया था, तो बस एक ही चांस मिलेगा खेलने के लिए, तो वो एक सबसे मुश्किल वक्त था मेरे लिए मेडल लेने के लिए, मगर वहाँ हो गया। उसमें गोली अंदर ही था, वो लंग्स के पास है, वो निकालने से और डेंजर है बोल के उन्होंने वो गोली नहीं निकाले। यहाँ आने के बाद हमको एकदम जीने का मतलब हौसला बढ़ गया। जो होना था तो हो गया, अभी उसके आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, उसके लिए हौसला होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, हो सकता है। मैं यूनिट जा रहा था, सब बस में सफ़र कर रहा था, तो बस में पहले से गुंडे लोग थे, 6 गुंडे बैठे हुए थे, पता नहीं था। फिर बाद में उन्होंने गाड़ी रोक के मारपीट करना, लूट-पीट करना शुरू किया लेडीज़ बच्चों से। फिर मेरे साथ भी हाथापाई किया, तो मैं वो सह नहीं गया मेरे से, मैं फिर उनको 3 आदमी को मैं पिटाई करके बाहर फेंक दिया। एक लड़का था 15-16 वर्ष का, उसको वो चाकू मार रहे थे पेट में, जैसे मैं झुक के उनको बचाने के लिए चाकू पकड़ा, पीछे से आके मेरे को गोली मारा स्पाइनल कॉर्ड में। जैसे मेरे को गोली मारा, वो लोग वो सब भाग गए, बस को लूट नहीं पाए, पर मेरे को ये इंजरी हो गया। तब से मेरा चेस्ट से नीचे पूरा डेथ सुन है। वो पुलिस थाना लेके गया ड्राइवर ने, पुलिस थाना से फिर पुलिस ने मेरे को कमान हॉस्पिटल लखनऊ में लिया, वहाँ मेरा MRI वगैरह हुआ। उसमें गोली अंदर ही था, वो लंग्स के पास है, वो निकालने से और डेंजर है बोल के उन्होंने वो गोली नहीं निकाले, चेस्ट ट्यूब डाल के फिर वहाँ से जो अंदर का जो पानी खून वगैरह है वो बाहर निकाले। मेरे को 7 दिन ICU में रहा, मेरा कंडीशन बहुत ख़राब था। 3 महीने के बाद फिर वहाँ डॉक्टर ने बोले मेरे को अभी पूना में जाओ, किरकी में, वहाँ पे हॉस्पिटल है, ऐसी वार्ड है, वहाँ पे आपको कुछ सिखाएंगे बोल के यहाँ MS किरकी में भेजे। यहाँ आने के बाद हमको कैसे मतलब बिस्तर में से कमोड में जाना है, चेयर में कैसे बैठना है, CIC वगैरह यूरिन पास कैसे करना है, वहाँ पे रिहैबिलिट थोड़ा सिखाए। 2006 में फिर जब मैं PRC ज्वाइन किया, यहाँ पे पुराने जो सीनियर लोग थे उन लोग को खेल के देखा, तो मेरे को भी मन लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ। मैं 2007 से शुरू किया खेलने। 7 बार नेशनल चैम्पियनशिप है हमारा। बास्केटबॉल में 5 गोल्ड मेडल है और स्विमिंग करता हूँ सर। स्विमिंग में मेरा 25 गोल्ड है और नेशनल का 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर, 1 ब्राउन्स है सर। जैसे मुझे पहले लग रहा था कि मैं ना इस कंडीशन में बिस्तर में लेटे कितने दिन जिएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। कहीं भी तो लगता था कि सुसाइड कर लो, थोड़ा इस कंडीशन में सबको किस लिए तकलीफ देना। यहाँ आने के बाद हमको एकदम जीने का मतलब हौसला बढ़ गया। कभी डिसेबिलिटी अपने आप को सोच के बैठेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ, मेरा सोचना ये है कि जो हमारे साथ हुआ है उसको तो हम बदल नहीं सकता है, तो क्यों हम जब बदल नहीं सकते उसके सोचने से क्या फ़ायदा। अगर घर के छात उड़ जाए, मैं तो उस टाइम छात के बारे में सोचता नहीं, मैं चांद तारे को देख के खुश होता हूँ। सर, जब मेरा इंजरी हुआ था, इंजरी के बाद मुझे पहले MS मथुरा में लिया गया। वहाँ से ले जाने के बाद मुझे दिल्ली रेफ़र किया, दिल्ली बेस में। दिल्ली बेस में मेरा सर्जरी हुआ। 7 दिन के बाद मुझे रेफ़र किया गया MS किरकी में। इसके बीच में मेरा इंजरी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैं MS किरकी में आया तब मुझे पता लगा कि मेरा इंजरी स्पाइन इंजरी, मैं कभी चल नहीं पाऊँगा। पहले तो मैं सोचा बोला इस अच्छा मैं मर क्यों नहीं गया। तो धीरे धीरे बाकी पेशेंट से बातचीत होने लगा, तो मैं काफ़ी दिन हॉस्पिटल में ऐसे ही ट्रीटमेंट में अंडर ट्रीटमेंट रहा। फिर कुछ दिन के बाद मुझे लगा भाई सब मुझे डिसेबिलिटी बोलता है, मैं अपने अंदर एबिलिटी ढूंढने की कोशिश किया था। फिर मैं वहाँ से कॉन्टैक्ट किया पैरालंपिक नोट में, वहाँ से मैं पैरा स्पोर्ट्स स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया। 3 साल में स्विमिंग पार्टिसिपेट किया नेशनल लेवल में। सर, मैं तो ये सोचता हूँ, मेरा सोचना ये है कि जो हमारे साथ हुआ है उसको तो हम बदल नहीं सकता है, तो क्यों हम जब बदल नहीं सकते उसके सोचने से क्या फ़ायदा। अगर घर के छात उड़ जाए, मैं तो उस टाइम छात के बारे में सोचता नहीं, मैं चांद तारे को देख के खुश होता हूँ। पहले तो मैं
जैसे नेशनल इवेंट आता था उससे 3-4 महीना पहले से प्रैक्टिस करता था। तो अभी फ़िलहाल तो एमएस में था, उस टाइम एमएस के दौरान किया था। यहाँ आने के बाद मैं अभी स्टेट लेवल पार्टिसिपेट किया हूँ, महाराष्ट्र स्टेट। उसके बाद फ़िलहाल तो अभी नहीं कर रहा हूँ पार्टिसिपेट, तो अभी आने वाला नेशनल पार्टिसिपेट करूँगा। मुझे साहब जब मैं बोर्ड आउट हुआ मुझे लगा मैं घर पे रहूँगा तो बहुत फीलिंग होगा। इस माहौल में सब एक जैसे एक दूसरे को देख के मोटिवेशन मिलता है। कोई यहाँ पे पैरालंपिक पार्टिसिपेट किया, कोई बैडमिंटन में, कोई बास्केटबॉल में, कोई एथलेटिक में। तो मैं भी सोचता हूँ मैं इनके बीच में मैं भी उनको देख के मोटिवेशन हो जाऊँगा और मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। सर मैं डेली हर रोज़ 2 से 4 के बीच में 1 घंटा स्विमिंग करता हूँ। उससे सर मैं एक तो बॉडी में इम्प्रूव आएंगे और उसके अलावा मैं नेशनल पार्टिसिपेट करने के आगे का गेम की तैयारी कर रहा हूँ। These people, when they get the injury, so that is the time when they first come to know that they are not able to move their limbs, lower limbs, upper limbs and all. That is the time when they get balked. So the rehabilitation, psychological rehabilitation, what you say, it really starts from that time onwards in the hospital itself. But still in the hospitals, you know, there are psychologists, there are psychiatrists and everyone, they keep on taking care of those people. But finally when they reach the final stage and they are invalidated out of the service, so that is the time when they feel now where to go. So psychologically they really become bogged down. Now as far as our center is concerned, you know, the environment and the atmosphere out here is such that all these people who have sustained spinal cord injuries, they are staying here for so long, and it's a teamwork basically, all are sailing in the same boat. And the environment and the atmosphere has been made in such a way that they themselves work as counselors. So these people, when they first come and join this place, it's definitely a challenge for us, because you have to inspire them, you have to motivate them to come to that level. Quadriplegics were having some problems because they were not able to do anything, all 4 limbs were not there. So we required something for them so that they should also do something. And then we started with the mouth painting. All quadriplegics are doing mouth painting, and they have reached that level where they have put their name in the Guinness World Record Book में डाला, and they have got a lot of Artist of the Year awards. They have been felicitated by a lot of governors and all. Then we started off with Ud Chalo call center, so wherein these quadriplegics can go and work. So there also they have started working. So now all these people, they are earning to the tune of 15 to 20,000 rupees per month. So that becomes a financial rehabilitation. I feel I am really blessed that Almighty has given me this opportunity of doing this job. I think everybody doesn't get this. The Almighty has destined something great for you. That is the reason that you are here today. And you see, there are so many people who are doing wonders here. So why can't you do? So that is where the thing starts here in our center. On your mark, set!
Part of the goal of a program like this is to build a conversation around the word disability. It's time to deconstruct that word disability and to understand that those with disabilities are often differently abled, often abled in ways that you or I cannot imagine. It's also important to understand the emotional equilibrium needs of those with disabilities. At this center, it's not just the physical requirements of these ex-servicemen that are catered to, it is also their sense of happiness. Samarth!